If you haven't studied anything till now and every single day you tell yourself that you will start tomorrow, I know exactly how that feels. I scored 99.2% in my class 10th board exams, and if I had to restart my preparation from today, this is the exact roadmap I would follow. This isn't going to be another motivational video. I am not going to tell you to study for 15 hours every single day. I am not going to tell you to delete Instagram. Instead, I will tell you exactly what you need to do for the next 30 days so that within a month you are back on track for your board exams and ऐसा कभी तुम्हें feel ही नहीं होगा कि you started this late. First of all, stop trying to finish everything. The biggest mistake students make is that they open 5 different books at once because they think that they're lagging behind. Instead, make one simple rule, which is finishing chapters, not studying for particular hours, doing this particular lecture, or reading pages. Your goal should be finishing chapters so that you're actually going somewhere, and your to-do list cannot look like study 8 hours. That is very vague, and you can study for 8 hours and achieve nothing also. Instead, your goal should look like finish electricity. And now how you'll finish electricity, I will tell you that further on in the video. बेसिकली तुम्हें कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स सेट करने होते हैं एंड तुम्हें एक एक करके ऑर्डर वाइज उन पैरामीटर्स को कंप्लीट करना है एंड देन यू कैन से दैट यू हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर. दिस वे यू हैव अ प्रॉपर रोड मैप टू एक्चुअली कंप्लीटिंग अ चैप्टर इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली वॉचिंग लेक्चर्स एंड डूइंग क्वेश्चंस. उससे अच्छा जस्ट फॉलो दिस रोड मैप एंड यू विल बी सॉर्टेड. फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ डिफाइन वेयर यू स्टैंड. एक नोटबुक लो, उसमें 3 कॉलम्स बनाओ. इन द फर्स्ट कॉलम राइट द टॉपिक्स विच यू डू नो, इन द सेकेंड कॉलम राइट द टॉपिक्स विच यू नो हाफ, एंड इन द थर्ड कॉलम राइट द टॉपिक्स विच यू डोंट नो एट ऑल. मैं हर 10th ग्रेड रोड मैप वीडियो में ये टेक्निक बताती हूँ बिकॉज इट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. जब तक तुम्हें क्लियरली तुम्हारे सामने दिख नहीं रहा होगा कि तुम्हें क्या क्या आता है, क्या बिल्कुल नहीं आता है, एंड किस चीज़ पर और थोड़ा वर्क करना है, तो तुम कभी भी अच्छे से कुछ कर नहीं पाओगे. Now the goal of these 30 days is not to finish the entire syllabus. Obviously you cannot do that, right? And वो करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है because if you have so much time then we will just divide it in a way that we are able to do it in a more efficient way, obviously. So the goal of the 30 days is to build momentum so that वो आगे जाकर break ना हो and तुम consistently अपना पूरा syllabus अच्छे से complete कर पाओ and you are actually back on track and तुम्हें ऐसा feel ना हो that you were once lagging behind. Now this is the most important section of this video where I am going to tell you तुम्हें कौन से resources use करने हैं. Here is where most students will waste their time, but मैं तुम्हें exactly बता दूँगी what works so that तुम बाहर जाके experiment ना करो. सबसे पहली बात, मैथ्स में, साइंस में, SST में, सब में तुम्हें सबसे पहले अपनी NCERT पूरी अच्छे से complete करनी है. NCERT की examples, back exercise सब करना है. मैथ्स के लिए NCERT बिल्कुल भी sufficient नहीं है, but it builds the base. and अगर तुम्हारा मैथ्स weak है तो NCERT से तुम्हारी काफ़ी अच्छी खासी practice हो जाएगी and तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो NCERT के कॉन्सेप्ट्स है उन्हीं का हायर लेवल होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, एंड साइंस में यू नीड टू नो ईच एंड एवरी लाइन. मेक श्योर दैट यू डू द एक्सपेरिमेंट्स प्रॉपरली, मेक श्योर दैट यू डू द क्वेश्चंस अंडर द एक्सपेरिमेंट्स, एंड मेक श्योर NCERT के साइंस के जो बैक एक्सरसाइज है तुम्हें अच्छे से आते हो, एंड फिजिक्स में जो अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं वो तुम्हें अच्छे से आते हो बिकॉज ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. एंड केमिस्ट्री का हर एक रिएक्शन तुम एक शीट ऑफ पेपर पर लिख लेना so that you can revise it quickly before your exam. The next thing you can solve is a question bank. So you can use these question and concept banks by PW जिसमें 50% competency based questions हैं. इसमें latest 2026 का solved paper भी है with proper solutions and 2025 का paper भी है जिसमें hand written solutions मिलेंगे आपको. Other than that, I really like these mind maps in the beginning of every chapter जिनसे तुम फटाफट revision कर सकते हो. I also use this in class 10 and competency questions का weightage is also quite nice. It has high yield PYQs from last 10 years and important NCERT questions with detailed explanations so that तुम्हारे सारे concepts clear हो जाएं. and इसमें mock tests भी है जिनको तुम practice कर सकते हो. You can buy these from the PW store. मैं link description में डाल दूँगी and additional discount के लिए use my coupon code ACE150.
उसके अलावा तुम साइंस और मैथ्स के लिए एग्जाम्पलर के MCQs कर सकते हो, बिकॉज दोज MCQs आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम एंड देर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा और कहीं से तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम्हें और हायर लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, यू कैन डू द कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो CBSE की वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है. बट अभी फ़िलहाल तुम इन चीज़ों को कर लो एंड इट इज़ सफिशेंट, ट्रस्ट मी. अगर तुम इसे अच्छे से कर लेते हो तो बहुत है. एंड द क्वेश्चन बैंक दैट आई recommended is also solid, so yeah, you can try that out as well. The link is in the description. Now let's move on to the next part. Now let's discuss the 30-day strategy that you will be following. In the first week you need to complete the chapters जो तुम्हारे रेड जोन के अंदर है, मतलब जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते, एंड उसके तुम्हें हाई वेटेड चैप्टर्स करने हैं. एंड इन चैप्टर्स पे हमें ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए दिस इंटायर 1 वीक इज़ डेडिकेटेड टू डूइंग दीज चैप्टर्स. तुम हर दिन 2-2 घंटे दे सकते हो टू दिस एक्स्ट्रा स्टफ, एंड ऑनेस्ट इट्स नॉट रियली एक्स्ट्रा स्टफ, इट्स जस्ट योर बेसिक स्टडीज़. इफ़ यू वांट यू कैन डेडिकेट 3 hours ऑल्सो, कंसिडरिंग यूर लैगिंग बिहाइंड. आई वुड रिकमेंड 2 hours to someone जिसका ऑलरेडी अच्छी पेस पे चल रहा है, बट फिलहाल start with 3 hours. If you are someone who cannot sit for long hours, take breaks in between and then study for 3 hours. Obviously you will obviously need breaks, but take थोड़े से longer breaks starting में, ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको और तुम बोर ना हो और तुम burnout feel ना करो. If you are someone जिसको आदत नहीं है 3 घंटे पढ़ने की, तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है. That's why I'm suggesting take थोड़े से longer breaks. Like you can take half an hour के break between a 1 hour study session, या फिर you can alter it based on your focus time. But this first week में हमें अपने सारे वो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जो तुम्हारे रेड जोन में, मतलब जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते एंड जिनका हाई वेटेज है. एंड इफ़ यू वांट एक वेटेज का चार्ट देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल गिव यू ऑल दैट एज वेल. बट दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी फॉर द फर्स्ट वीक. ओके. Now in the second week you need to complete the remaining chapters in the red section. Now these 2 weeks are just to complete तुम्हारे red वाले chapters because they are the most important ones. And क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते, तो अगर तुम अच्छे से कर लोगे तुम्हारा थोड़ा सा confidence build हो जाएगा and you will be done with the hard part earlier. So तुम आगे और easily कर पाओगे और तुम्हारा momentum build होने में आसानी होगी, right? Now in week 3 we need to convert the yellow chapters into the green chapters. The yellow chapters are वो जो तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं and green वो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं. Now if you're watching this video, I think तुम्हारे green chapters बहुत कम होंगे. So जो भी yellow chapters हैं उनको हमें green में convert करना है, उन्हें हमें और perfect करना है. और perfect कैसे करोगे, concept clarity कैसे लोगे, अपने doubts पूछो क्लास में and अपने backlogs clear करो and और question practice करो. Question bank के questions practice करो, ठीक है. उसमें competency questions भी हैं, सारे type के questions हैं, तो तुम्हारी एक well rounded practice हो जाएगी if you do the question bank. So yeah, try to do this. And अगर तुम्हें question banks practice नहीं करना है, there are a lot of free resources available online, you can use those. And NCERT की questions तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, तभी तुम उनको green में डालना. अगर तुम्हें NCERT ही नहीं आता, then there's no point in putting it in the green box. You'll be lying to yourself. And in the fourth week you need to focus on more practicing questions. And जो तुमने सारा कुछ पढ़ा है पिछले 3 वीक्स में, उस सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें उस लास्ट वीक में स्केड्यूल करनी है. तुम एक दिन में 2 या 3 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस रख सकते हो, लाइक 1 hour फॉर ईच चैप्टर यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब वो 1 hour में ट्राई टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 questions फॉर एवरी सिंगल चैप्टर दैट यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस 3 weeks, ताकि तुम्हारा पूरी चीज़ का अच्छे से रिविजन हो जाए. एंड आफ्टर दैट यू कैन मे बी आस्क ChatGPT टू क्रिएट टेस्ट फॉर यू एंड उसको अपना सिलेबस वगैरह बता देना एंड ऑल, एंड यू कैन जस्ट आस्क इट टू मेक इट टेस्ट, एंड वो टेस्ट बनाएगा, उस टेस्ट को करना एंड तुम्हारा पूरा फाइनल रिविजन एक बार अच्छे से हो जाएगा एंड तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. ऑल्सो फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मैंने अभी तक तुम्हें रिसोर्सेज नहीं बताए कौन से यूज़ करने हैं. सो फॉर हिंदी इंग्लिश जो तुम्हारी रीडर बुक्स होती है उन्हीं को यूज़ करना. ग्रामर के लिए यू कैन रेफर टू यूट्यूब चैनल्स. इंग्लिश के लिए डियर सर को रेफ़र कर सकते हो, ग्रामर के लिए. एंड हिंदी के लिए फॉर लिटरेचर यू कैन रेफ़र हिंदी अध्यापक. एंड जो ग्रामर है उससे आई डोंट थिंक तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लाइक बोरिंग वीडियोज़ होती हैं. इंस्टेड यू कैन जस्ट रीड ग्रामर की बुक, तो कोई अच्छी सी बुक ले लेना एंड उसी से पढ़ लेना, सफिशेंट है. हिंदी की ग्रामर उतनी डिफ़िकल्ट नहीं आती है, लिटरेचर में दिक्कत होती है एंड वो तुम सॉरी नॉट डियर सर, हिंदी अध्यापक से पढ़ के समझ सकते हो. ही इज़ अ ग्रेट टीचर एंड वो दोनों हिंदी ए और हिंदी बी के लिए पढ़ाते हैं. दोनों अलग अलग चैनल्स हैं उनके, सो यू कैन चेक दोज आउट. एंड फॉर इंग्लिश लिटरेचर कम्युनिकेटिव आई हैव नॉट येट फाउंड अ चैनल विच इज़ गुड इनफ, सो आई जस्ट डिड इट विद माई सेल्फ. एंड मेरी क्लास के जो नोट्स थे जो मैम बताती थी वो सब मैं नोट करती थी, उससे मैं करती थी.
बट अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है, आई एम अज्यूमिंग तुम्हारा वो सब नहीं होगा। पोएम्स के लिए कैन टेक हेल्प फ्रॉम AI, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है एंड तुम्हें वहीं पर सारे पोएटिक डिवाइसेस वगैरह मिल जाएंगे। एंड बाकी यू कैन लुक फॉर हैंड आउट्स गूगल पे एंड स्टडी फ्रॉम दोज हैंड आउट्स। सो या जस्ट डू लिटल रिसर्च ओवर देयर, बट आई डोंट थिंक यू नीड टू बाय एनी एडिशनल बुक फॉर लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि इन्हीं सारे फ्री रिसोर्सेज से कवर हो जाता है। एंड बाकी अपने क्लास की वर्कशीट के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में एंड बोर्ड एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। एंड उसके अलावा यू कैन प्रैक्टिस PYQ के ग्रामर पोर्शन एंड लिटरेचर पोर्शन फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, because obviously they will give you an idea of how questions are asked in the final board exam. And another very important thing when you are revising, practice PYQs, because that builds confidence. And 2024-2025 के सारे PYQs प्रैक्टिस करना, स्पेशली फॉर मैथ्स, बिकॉज मैथ्स के पेपर इन दोनों ईयर में थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट आए थे। तो तुम्हें एक्चुअली में पता चलेगा अगर तुम्हारा लेवल वहाँ तक पहुँचा है या फिर नहीं पहुँचा। PYQs प्रैक्टिस करना इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। एंड अगर तुम वाला क्वेश्चन बैंक परचेस करते हो उसमें तुम्हारे काफ़ी सारे PYQs कवर हो जाएंगे। अदर देन दैट तुम गूगल पे सर्च करना चैप्टर का नाम PYQ CBSE क्लास 10, यू विल फाइंड टन्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज जहाँ पर यू विल गेट PYQs विद their solutions. So practice them from there. Now let me give you a quick overview of what your daily schedule should look like. First of all, तुम्हें पहले 30 minutes में वो रिवाइज करना जो तुमने पिछले दिन पढ़ा था। एंड इफ़ इट्स योर फर्स्ट डे देन डोंट गिव दैट टाइम टू रिवाइजिंग, बिकॉज तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बट या तुम्हें स्टार्टिंग में 30 मिनट्स वो रिवाइज करना तुमने पहले पढ़ा था। एंड नेक्स्ट यू नीड टू गिव 3 hours वन टू ईच सब्जेक्ट एंड यू नीड टू डेडिकेटेडली स्टडी। अगर तुम लाइक उससे ज़्यादा टाइम दे सकते हो दैन गो अहेड, बट आई वुड रिकमेंड 3 hours एटलीस्ट तुम दो, दैट इज़ गुड इनफ। एंड सी ट्राई टू प्लान योर सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स इन अ वे कि तुम एक दिन में बहुत ज़्यादा हैवी चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स ना पढ़ो। एक इजी और एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ऐसे पेयर करके पढ़ने का ट्राई करना, सो दैट यू डोंट गेट बर्नड आउट एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे खुद के मेंटल पीस और सुकून के लिए। सो या मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड and make sure to take breaks in between your study sessions so that you don't burn yourself out. Don't try to study for 3 hours continuously. Take at least 10 minutes break between 1 hour session. And if you are someone who can study for only 20 minutes focus, okay, that's totally fine. Study for 20 minutes, take 5-minute ka break. This is known as the Pomodoro technique, and you can follow this every single day and you can have multiple 20-minute sessions. इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक दिन में तुम 20 मिनट पढ़ोगे। नो, you need to study enough कि तुम्हारे उस पर्टिकुलर दिन के गोल्स सारे कंप्लीट हो जाए। Don't stop when you're tired, stop when you are done, okay? Most students think that watching lecture equals studying, but that is not true at all. अगर तुम खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुमने कुछ भी नहीं सीखा, अपने सामने किसी टीचर को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखना is not studying. Solving those questions yourself and actually checking कि तुम्हें समझ आया है नहीं आया है, that is studying. For every 1 hour lecture you watch, spend 1 hour practicing questions and then you will have a productive स्टडी लेक्चर बैलेंस। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम 10th क्लास से ही सेल्फ स्टडी की हैबिट डाल लोगे तो तुम्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सेल्फ स्टडिंग, बिकॉज इन 11th-12th सेल्फ स्टडी के बिना तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। If you follow this roadmap, after 1 month you will be back on track, and उसके बाद मैं तुम्हें आगे का roadmap बताऊंगी so that you can study efficiently and plan your schedule in a way कि तुम अपना पढ़ाई और अपना free time अच्छे से manage कर सको and you don't burn yourself out, because this year is supposed to be the best year of your life where you're going to make the best memories and also score the best marks for 11th grade begins, because honestly 10th grade was 10,000 times better than 11th, and I honestly don't like 11th grade. So yeah, please make the best of this year and do subscribe to my channel for more updates for class 10th, and I will keep making videos to help you all. अगर तुम्हें किसी और specific topic पे video चाहिए then let me know in the comments. Love you all always. Bye bye.